بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. حاضرین گرامی، حرمت والے مہینے کے ممنوع اور مشروع اعمال کے تعلق سے بات چل رہی ہے. اس سلسلے میں گزشتہ کل کے درس میں ہم نے معلوم کیے کہ حاجی کو 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر منا کے میدان میں پہنچنا ہے تو کیا کیا کام کرنا ہے اور کیا کیا کام نہیں کرنا ہے. پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جا کے کیا کیا کام کرنا ہے اور کیا کیا کام نہیں کرنا ہے. تو منا اور عرفات کے کوتاہیوں اور غلطیوں کے تعلق سے ہم نے معلوم کیا. پھر اس کے بعد آج ہم معلوم کریں گے کہ عرفات کے بعد مزدلفہ جایا جاتا ہے، تو مزدلفہ میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. مزدلفہ کے تعلق سے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو مزدلفہ کو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. مشعر الحرام کیا ہے؟ مشعر الحرام ایک پہاڑ کا نام ہے. مزدلفہ کے دامن پہ ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے دامن پہ ٹھہرے اور آپ نے فرمایا کہ سارا میدان مزدلفہ ہے، تمہیں جہاں بھی جگہ ملے وہیں پر ٹھہر جاؤ. تو مزدلفہ میں ہمیں پہنچ کر سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا ہے. مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر قصر کر کے پڑھنا ہے. تو ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ قصر نہیں کرتے ہیں، ملاتے نہیں ہیں، یہ غلط بات ہے. قصر یعنی 2 رکعت مغرب 3 رکعت پڑھنا ہے اور 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے. تو وہاں پر عشاء کی نماز 2 رکعت پڑھنا ہے، مغرب 3 رکعت، پھر عشاء 2 رکعت پڑھنے کے بعد آرام کرنا ہے. جب تک ہو سکے ذکر و اذکار کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. تو کثرت سے اذکار کریں اور سو جائیں. ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ مزدلفہ کی رات، چونکہ وہ چاند رات ہے دیکھا جائے تو، کیونکہ 9 ذی الحجہ ختم ہو کے 10 تاریخ کی رات ہے، وہ رات ہے اور دوسرے دن عید ہے. تو عام طور سے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ چاند رات ہے تو اس رات کو عبادت کرنا ہے جاگ کے. یاد رکھیے، چاہے حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، چاند رات کی عبادت ثابت نہیں ہے. چاند رات کی عبادت، رات جاگ کے عبادت کرنا، یہ ثابت نہیں ہے. اب حاجی لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک تو 9 ذی الحجہ دن بھر عبادت کیے، وہ بھی کھڑے ہو کر عرفہ کے میدان میں دعا کیے ہیں، گرمی سے ہیں برداشت کیے ہیں. اب اس کے بعد پھر رات جاگتے ہیں. رات مزدلفہ میں رات نہیں جاگنا، رات جاگ کے عبادت نہیں کرنا ہے. جہاں تک ہو سکے مغرب عشاء پڑھ لیں، جتنا ہو سکے ممکن ہو سکے اذکار کریں. آپ بیٹھے بیٹھے اذکار کر سکتے، جب تک نیند نہ لگے اذکار کرتے رہیں. اور رات ساری نہ جاگے، یہ غلطی اور کوتاہی ہوتی ہے کہ ساری رات جاگتے ہیں. ساری رات جاگنے کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرے دن قربانی کا دن ہے، یعنی حاجی کے لیے تو عید نہیں ہے مگر 10 ذی الحجہ ہے، اور 10 ذی الحجہ کو بہت سارے کام کرنے رہتے ہیں. صبح سے شام تک کام کرنے رہتے ہیں، کافی مصروفیت ہوتی ہے. رات ساری جاگ کے دن میں آپ اصل کام نہیں کر پاتے ہیں.
10 ज़िलहिज्जा को क्या क्या करना है, मिना में पहुंच के क्या क्या करना है, वो इंशाल्लाह मैं अर्ज करूंगा। मुज़दलिफा से पहले खत्म कर लेते हैं। मुज़दलिफा में एक और काम आप करें जो करने का है, वो है कि आप वहां से कंकरियां चुन ले, कंकरियां चुन ले, 70 कंकरियां ले ले और कंकरियां वहां से उठा ले, क्योंकि फिर मिना पहुंचकर आपको कंकरियां चुनना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं कि मुज़दलिफा से ही कंकरी लेना है, कहीं से भी ले ले आप। जमरात को कंकरियां मारने के लिए वहां से ले ले, यह आपके लिए आसानी होगी, ले ले, आपके लिए आसानी होगी, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। तो ये काम हाजी को मुज़दलिफा में करना है। दोबारा सुने कि वहां पहुंचकर मगरिब इशा पढ़ लें, जमा करके कसर करके, उसके बाद आप कंकरियां चुन ले, अस्कार करते हुए सो जाए, आराम करें। सुबह उठना है, फजर उठें, फजर उठने के बाद आप फजर की नमाज पढ़ें। फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपको कहां रवाना होना है? फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज के तुलू होने तक इंतजार करें। सूरज के तुलू होने के बाद, उजाला होने के बाद आपको कहां जाना है? मिना जाना है। यह 10 तारीख है। मिना जाके सबसे पहले दिन एक जमरे को कंकरी मारना है, सिर्फ 7 पहले दिन एक जमरे को कंकरी मारना है। कंकरी मारना है, पहला काम यह है। काफी भीड़ भाड़, सारे हाजी उस दिन कंकरी मारते हैं एक साथ। और फिर उसके लिए गलतियां क्या होती है कंकरियों के साथ, ये मैं आपको बता देता हूं। एक बात यह होती है कि कंकरी मारते हुए, एक तो जाते हुए आते हुए जो रूल्स रेगुलेशन से उसको फॉलो नहीं करते हैं, अनाप शनाप चले गए और जिसकी वजह से भीड़ भाड़ हो जाती, स्टंपिंग हो जाती, ये गलती होती है। नहीं, जिस वक्त तय किए, मुतय्यन किए, आप उसी वक्त ही अपने अपने हिसाब से, टेंट के हिसाब से जाएं। फिर वहां जाने के बाद आप कंकरी मारें कि आप अल्लाह अकबर कहकर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर भी चाहे तो कहें, कहकर कंकरी मारना है। और एक कंकरी मारते वक्त आपको इतना ख्याल रखना, वो जो बाउंड्रीज बनी हुई है, जो दीवार बनी हुई है, दीवार के अंदर पड़े बस। जरूरी नहीं है जो पिल्लर है वो तो एक निशानी है, पिल्लर को ही मारना है। आप क्या करते, इतना जोर से मार रहे हैं, पिल्लर को टकरा के कंकरी फिर किसी को लग रही है, ये गलती है। अब क्या समझते हैं कि शैतान को मार रहे हैं? ये कहीं भी नहीं कि शैतान को मार रहे हैं। कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं है कि ये छोटा शैतान, बड़ा शैतान, दरमियानी शैतान। कहां है? इसको अकबा कहा गया है। अकबा कुबरा, सुगरा, उस्ता, बड़ा, छोटा, दरमियाना, अकबा कहा गया है। और अकबा के माने एक वादी, एक वैली, एक घाटी को कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मुलाकात किए थे मदीने वालों से, उनको दावत तबलीग के बारे में बताया, इस्लाम के बारे में बताया, इस्लाम कबूल किए हैं। हाँ, तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के आप अमल करें, ऐसा नहीं अब वहां जाकर शैतान से फाइट कर रहे हैं, शैतान को इस जोर से मारते हैं, कोई छतरी फेंकता है, कोई चप्पल फेंकता है, कोई जूता फेंकता है। ये गलत बात है, ये होने वाली गलतियां हैं। यानी हाजियों से होने वाली गलतियों में से ये भी है कि वहां इतने जोर से कंकर फेंके कि बाहर आ जाएं। फिर उसके बाद आप जूते, चप्पल ये सब फेंके और उस पिल्लर को मारना कोई जरूरी नहीं, अंदर पड़े। अंदर ना पड़े तो फिर आपको फिर दोबारा मारना पड़ेगा, अंदर पड़ना चाहिए आपकी कंकरियां। बस इतना ख्याल रखें हैं, इतना ख्याल रखें, ये बस काफी है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी तरफ से कोई और कंकरियां मारना चाहें मार सकते हैं। तो मुना में आप पहुंच गए 10 तारीख को। पहला काम, पहले दिन एक जमरे को कंकरी मारना है। मारने के बाद आपको कुर्बानी करना है, हाजी को कुर्बानी करना है। अब कुर्बानी से मुताल्लिक गलतफहमियां क्या होती है? अब फोन लगाते हैं जिनको उन्होंने कुर्बानी के लिए दिया है, मेरी कुर्बानी हुई है। अब वो जितनों का फोन आता सबको बोलता हाँ आपके हो गए, हाँ आपके हो गए, हाँ आपके हो गए। उनको खुद पता नहीं रहता है। जब नबी ने कहा इफ़ाल वाला हरज, आगे पीछे हो जाए, 10 ज़िलहिज्जा के काम आगे पीछे हो जाए, कोई हरज नहीं है, बेहतर है। कंकरी मारने के बाद अब कुर्बानी करे, बाल निकाले, फिर उसके बाद तवाफ़ इफ़ाज़ा करें। ये 4 काम आपको उस दिन करना है। तरतीब और अफजल है कि तरतीब से के साथ करें। अगर मुमकिन नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है, आपने कुर्बानी के लिए दे दिया, खत्म। अब कुछ लोग नहीं मेरी कुर्बानी अब तक नहीं हुई है इसलिए मैं बाल नहीं निकालूंगा, बाल नहीं निकालूंगा, उसी हालत में रहते हैं। ये तकलीफ है, तकलीफ है। क्योंकि इतने जो लाखों कुर्बानियां हैं, ये लाखों कुर्बानियां कहां से आदमी फॉलो अप करे कि किसकी कुर्बानी पहले हुई बाद में हुई? मुश्किल है,
मुश्किल है। इसलिए क्या करना है कि भाई ठीक है, कंकरियां मार दिए हैं, अब आप सीधा जाओ, कुर्बानी आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, अगर आपने बकरा ले रखा है कुर्बानी करने के लिए, आप जा सकते हैं, जाके वहां कुर्बानी कर सकते, ठीक, अच्छी बात है, अपने हाथ से जाके कुर्बानी कर दें। कर देने के बाद लेकिन यहां कुछ गलती याद रखें कुर्बानी से मुतालिक। कुछ लोग वहां पर भी फ्रॉड होते हैं, वो कहते हैं कि हमें कुर्बानी दे दो। कुछ लोग यहाँ इंडिया से जाते हैं, कुछ उलामा भी कहते हैं हमें दे दो, हमें क्लीन से करेंगे। अभी क्लीन से करने का क्या मतलब है, आज तक मुझे समझ में नहीं आया है। याद रखिए, इसलिए अब पता नहीं ऐसे वैसे कि ना दें, आप गवर्नमेंट को दे दें, गवर्नमेंट को दे दें, और राजही जो है कंपनी वो लोग करते हैं, और गवर्नमेंट के जो है उनको दे दें, वो बिल्कुल आपको सही तरीके से, देर सवेर सही, लेकिन वो लोग करेंगे। ऐसे वैसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो लेने के बाद करते नहीं करते, हाँ आपने दे दिया पता नहीं था, अगर नहीं कर रहा है वो जिम्मेदार होंगे, लेकिन आपकी कुर्बानी तो हो जाएगी, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। अब ये जो कुर्बानी देते हैं, ये क्या कुर्बानी है, ये हज की कुर्बानी है। हज में जो भी गया है, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, एक घर के 10 अफराद गए, पूरे 10 को भी देना है, नहीं एक दे दिए ना, सारे घर वालों की तरफ से काफी है। वो जो यहां गैर हाजी है उनके लिए है, गैर हाजी के लिए एक कुर्बानी सारे घर वालों की तरफ से है, चाहे वो कुर्बानी आपका एक हिस्सा ही क्यों ना हो। एक हिस्सा जब एक बकरे के कायम मुकाम नबी ने फरमाया, तो जाहिर सी बात है वो हर एतबार से कायम मुकाम है। एक बकरा जैसे सारे घर वालों की तरफ से हो सकता है, एक हिस्सा भी सारे घर वालों की तरफ से हो सकता है। तो अब अगर इसको हैसियत है, घर के 2 अफराद गए हैं, बाकी घर वाले यहां पर मौजूद हैं, तो क्या वहां कुर्बानी दे रहे तो यहां कुर्बानी नहीं देना, देना है। ये कुर्बानी अलग है, गैर हाजी की कुर्बानी इस्तिताअत के साथ जुड़ी हुई है, इस्तिताअत है तो यहां देना है। वहां हज के साथ है, घर के 2-3 अफराद गए, सारों के सारे देना है। यह हज की कुर्बानी अलग है, आम हालत की कुर्बानी अलग है। कुर्बानी से मुतालिक कुर्बानी हो गई है, अब आपको काम करना है, तीसरा काम सर मोड़ना है, सर मोड़ना है। तो सर मोड़ दिया, चाहे आप खुद मूंड लो अगर आपको आता है, या कोई आपस में मुंडवा ले, जरूरी नहीं है कि वहां पर जो है इसके पास जाएं, और जो लोग सर मोड़ने वाले उनके पास ही जाएं और उनके पास ही जाके करें। बहुत डिमांड करते हैं, एक सर मोड़ने के लिए पूछते कि 100 रियाल दे दो, हाँ इतने परेशान करते हैं, 100 रियाल। अब कहां से भाई, इंडिया यहां से जाने वाले के लिए 100 रियाल बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप आपस में ठीक है, आप जिसलिए हाजी जब जाते हैं ना मिना को, 8 जिलहिज्जा को जाते हुए आप अपने साथ उस्तरा हो या ब्लेड हो कुछ लेकर जाएं, क्योंकि वहां तो आपको मिलेगा नहीं तो क्या करना पड़ेगा, फिर वो उनको देना पड़ेगा, मजबूरी है। आप साथ में लेकर जाओ, साथ में लेकर जाने के बाद जाते हुए अलग से इहराम के अलावा 2 जोड़े कपड़े भी लेकर जाना। हमें बार बार ये कहता हूं, क्योंकि अभी आपने सर मोड़ दिया या आपस में एक दूसरे से मुंडवा लिए, कोई हर्ज नहीं है, कर लो। सर मोड़ने के बाद आप गुस्ल कर लें, आपका इहराम निकल गया। 8 जिलहिज्जा को जो इहराम बांधे थे, अब 10 जिलहिज्जा कंकरी मारने के बाद, कुर्बानी करने के बाद, कुर्बानी आप दे दिए, छोड़ दो, कंकरी मार दिए, सर मोड़ लो, इहराम निकल गया। इहराम की चादर अब निकाल दो, अब ईद का दिन है ये, हाजी के लिए ईद का कुछ नहीं है। खुतबा एक होता मिना के मैदान में, ठीक है सुन ले, लेकिन ईद के नमाज 2 रकात नहीं है हाजी के लिए, हाजी के लिए नहीं है। अब आप छोटा हलाल हो चुके, इहराम उतर गया, इहराम उतर गया, सब हलाल आपके लिए, बीवी के सिवा, बीवी के सिवा सब कुछ आपके लिए हलाल है। अब बीवी हलाल नहीं, छोटा हलाल आप हुए हैं। बड़ा हलाल होने के लिए उस दिन और एक काम करना, तवाफ इफाजा, तवाफ इफाजा और साई, इस तवाफ के साथ साई है। तवाफ इफाजा और सई, यहां पर हम रुकते हैं, और इसमें क्या गलतियां होती है तवाफ इफाजा और सई के ताल्लुक से, और बड़े हलाल होने से पहले क्या क्या काम, फिर अय्याम तशरीक में यानी 11, 12, 13 जिलहिज्जा अय्याम तशरीक में मिना में रुकते हुए क्या गलतियां होती हैं, इंशाअल्लाह आगे मालूम करेंगे, क्या करना क्या नहीं करना है। दुआ रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको और खुसूसन हाजियों को सुन्नत रसूल के मुताबिक हज करने की तौफीक अता फरमाए, गलतियों से कोताहियों से परहेज व गुरेज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।